Hello and welcome to International English Language Classes. Friends, in the series of tenses in English grammar, the topic of this video is present continuous tense. Before we begin, I request you to like, subscribe and share my channel to get more videos on English grammar, and please press the bell icon to get the notifications. Let's begin. Let's first start with the definition. The definition says the tense is used for actions or events that are happening or developing at the moment. The actions are happening right at this moment. In short, if you want to describe in one word, it is ongoing action. The tense is used for ongoing actions. Let's understand the definition in Hindi. काल का उपयोग उन क्रियाओं या घटनाओं के लिए किया जाता है जो वर्तमान में हो रही हो या विकसित हो रही हो, यानी कि जो क्रियाएं हो रही है, आप देख रहे हैं या कोई और आपको बता रहा है कि क्रिया हो रही है, उसका वर्णन करने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और दूसरी बात है कि उसमें वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आई के साथ एम लगाते हैं, ही सी इट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, वी यू दे प्रोनाउन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली इस काल में समय नहीं बताया जाता। वी डू नॉट मेंशन द टाइम ऑफ हैपनिंग द इंसिडेंट और एक्शन। Why? Obviously, because action is happening right now and you are speaking at that moment, you will use present continuous tense unless other tense. Okay? आप समय नहीं बता रहे क्योंकि वो काल अभी हो रही है, इसलिए अगर आप समय बताएंगे तो वो past tense हो जाएगा, या फिर कोई और क्रिया जो टेंस है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसका फॉर्मेशन क्या है। What is the formation of this tense? So formation है subject plus am is are plus verb का ing form plus object. Now let's see with the examples. I am reading a book. Here I is a subject. Am, because I is used over here. I is for with I. Am will come together. Reading is ing form of read and book is object. इसी तरह से हम 3-4 सेंटेंस और लेंगे और जानेंगे कि कैसे सेंटेंस बनाएंगे। सी इज गोइंग टू द कॉलेज, वह कॉलेज जा रही है, अभी क्रिया शुरू है। इट इज रनिंग ऑन द रोड, वह रोड पे दौड़ रहा है, क्रिया शुरू है, आप उसका वर्णन कर रहे हैं, देखने वाले भी देख रहा है, बोलने वाला भी बोल रहा है कि क्रिया चालू है। यू आर राइटिंग अ लेटर, विथ यू विल यूज आर। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम खत लिख रहे हो, मीन्स you are telling when the action is going on with the ongoing actions. They are dancing in the room, वह रूम में डांस कर रहे हैं। We are singing a song, हम गाना गा रहे हैं। All actions are happening right at this moment and they are described in that way. अभी भी क्रिया हो रही है, इसीलिए वह present continuous tense का इस्तेमाल करते हैं। Now let's see what is the formation of negative sentence. Subject am is are plus not, because it is negative sentence, plus ing form of the verb plus object and other words. So here we have included one more word that is not to indicate negative. Okay, if some action is not being done, we use this tense. I am not reading a book, मैं book नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी क्रिया कुछ नहीं हो रही, इसलिए I am not reading a book. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप नॉट का इस्तेमाल करते हैं। सी इज नॉट गोइंग टू द कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जा रही है। इट इज नॉट रनिंग ऑन द रोड, वह रोड पे नहीं दौड़ रहा है। इट, क्योंकि हम यहाँ पे पशु या जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं इट, और बाकी का जो फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, अगेन विथ यू आर यूजिंग आर, एंड फॉर नेगेटिव यू आर यूजिंग नॉट। ओके, सो आप तुम या आप लेटर नहीं लिख रहे हो। वी आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, हम गाना नहीं गा रहे हैं। दे आर नॉट डांसिंग इन द रूम, वह रूम में डांस नहीं कर रहे हैं।
So friends, if you want to make interrogative sentences, then the formation of the sentences will be, अगर आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेशन ये रहेगा, am is are according to the pronouns plus subject plus ing form of the verb plus object. Okay, so now let's see the sentence. Am I reading a book? Because it is a question, you have to put the helping verb in the beginning of the sentence. आप क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए आप सेंटेंस की शुरुआत में ही आपको हेल्पिंग वर्ब एम लगाना पड़ेगा, तभी तो वो प्रश्नवाचक बनेगा. तो आप देखिए, एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं बुक पढ़ रहा हूं. बाकी सब सेम है, आपने एम को आगे ले लिया, आई को पीछे ले लिया, बाकी सब फॉर्मेशन सेम है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है. अगर आप लिखते हैं तो बोलने में तो समझ में आ ही जाता है जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो. नेक्स्ट सेंटेंस, इज शी गोइंग टू द कॉलेज? क्या वह कॉलेज जा रही है? इज इट रनिंग ऑन द रोड? क्या वह रोड पे दौड़ रहा है? आर यू राइटिंग अ लेटर? क्या तुम लेटर लिख रहे हो? आर दे डांसिंग इन द रूम? क्या वह रूम में डांस कर रहे हैं? आर वी सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या हम गाना गा रहे हैं? So friends, these were interrogative sentences. I hope that I have explained all forms of present continuous tense, and I also hope that you will be able to use this tense easily without any hesitation, and you will increase your fluency in English by help of this video. So please make sentences of your own to be more fluent in English. Thank you.